ये इतना तकलीफ दे क्यों है? क्यों मैं खुश क्यों नहीं रह सकती? یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ میں اندھیرے گھڑے میں ہوں اور کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ شاید مجھے اپنے آپ کو مار لینا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی جینے کے لائق نہیں ہے۔ کسی کو پرواہ بھی نہ ہوگی اگر میں چلا جاؤں تو۔ ٹھہر جائیے، ایسی سوچوں کو اپنے اندر آنے نہ دیں، کیونکہ اس طرح کی سوچیں جو کہ آپ کو سٹریس میں لے کر جاتی ہیں یا انزائٹی میں لے کے جاتی ہیں، یا تو وہ ابلیس کی طرف سے آ رہی ہیں، یا پھر آپ کی اپنی ایموشنل ڈسٹربنس کی وجہ سے آ رہی ہیں، یا پھر آپ کی زندگی گناہ میں اس قدر گری ہوئی ہے کہ وہ گناہ کی سرشت کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی سوچیں آ رہی ہیں۔ لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا کی محبت کو یاد کریں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب اس کی 10ویں آیت میں ہمیں یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ چور نہیں آتا چرانے اور ہلاک کرنے، لیکن میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ یسوع مسیح ہمارے لیے اس لیے آیا تاکہ ہم کثرت کی زندگی پائیں، اس لیے نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو قتل کر لیں۔ اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا اور اس دنیا میں جانے کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی خود کریں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، ہم جب چاہیں مر جائیں۔ یہ گناہ ہے، آپ نے اس گناہ کو نہیں کرنا۔ جب آپ کو اس طرح کی سوچیں آتی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو خدا کے کلام کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر آپ نے دھیان دینا ہے وہ ہے اوپر کی طرف دیکھیں، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا آسمانی باپ جو آسمان پر موجود ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں ان سوچوں سے چھٹکارا دلا سکے۔ اگر آج آپ اپنے مستقبل کو لے کر سٹریس آؤٹ ہوئے ہیں اور مستقبل کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور اس لیے آپ یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ اب آپ اپنی زندگی ختم کر لیں گے، تو ٹھہر جائیں۔ مستقبل تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے؟ کیا آپ اس پر شک کر رہے ہیں؟ شک جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہمارے اندر آتا ہے۔ آپ آگے عدن میں دیکھیں، اس نے آدم اور حوا کو کنفیوژن میں ڈال دیا، شک میں ڈال دیا کہ خدا نے تمہیں کہا ہے کہ تم مر جاؤ گے، لیکن تم نہیں مرو گے اور تم خدا بن جاؤ گے۔ یہاں پر وہ کنفیوژن اور شک لے کر آتا ہے۔ شک ابلیس کی طرف سے ہے، اسی لیے اپنی زندگی میں شک کو نہ آنے دیں، بلکہ خدا پر مکمل بھروسہ کریں۔ اور اگر آپ اپنے ماضی کو لے کر پریشان ہیں تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس سب کو بھول جائیں اور آگے کی طرف دیکھیں، اوپر کی طرف دیکھیں، اپنے خدا کی طرف دیکھیں جس نے آپ کو اس زمین پر پیدا کیا ہے۔ آپ بلا وجہ پیدا نہیں کیے گئے، آپ کسی حادثے کی وجہ سے اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دیں جو کہ ابلیس کی سوچ یا آپ کی ایموشنل ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کے اندر آ رہا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا یا آپ سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ آپ سے پیار کرنے والا ہے، اور وہ ہے آپ کا آسمانی باپ، وہ ہے ہمارا خدا، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس نے تو اس کو بھی دے دیا تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ ہمارا کفارہ ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھول گیا ہے؟ اسی لیے جب کبھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کی طرف نظر کریں، خود سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیں۔ ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں پہلا پطرس کا خط، اس کا 5 باب 6 سے 7 آیت۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ سو میرے بہنوں بھائیوں، آج اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیالات چل رہے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا کو ہماری فکر ہے۔ ہم اپنی فکر کر کر اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی طرف دیکھنا شروع کریں۔ اگر آپ اندھیری کھائی میں ہیں تو اوپر خدا کی طرف دیکھیں، خدا آپ کو ہاتھ بڑھا کر نکال لے گا۔ لیکن اگر آپ نیچے ہی دیکھتے رہیں گے تو آپ اسی اندھیرے کے اندر لڑتے رہ جائیں گے، اور آخر میں یہ سوچیں، یہ خیال، یہ شک، یہ سب آپ کو دبا لے گا۔ اگر خوف کی وجہ سے آپ کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو ہمیں یہ کلام بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی ہے، بلکہ اس نے ہمیں قدرت، تربیت اور محبت کی روح بخشی ہے۔ اسی لیے ہم خوف زدہ نہ ہوں۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے بیش بہا وعدوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب کبھی اس طرح کی سوچیں آپ کو گھیر لینے لگیں
तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि ये सोचें आ कहाँ से रही हैं, ये शक पैदा कहाँ से हो रहा है, कौन सी जगह है जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। अगर तो आपकी गुनाह की सिरिश्त है तो तौबा करें, खुदा के पास आए। एक वही है हल, इसके अलावा कोई हल नहीं है। कोई इंसान आपको इन सोचों से निकाल नहीं सकता, कोई भी आपको इससे बचा नहीं सकेगा, सिर्फ खुदा है। उसके पास आए, अपने गुनाहों से तौबा करें, रूहुल कुदस से कहें कि वो आपको सैंक्टिफाई करे, आपको पाक करना शुरू करे और आप इन सोचों से लड़ पाएंगे। अगर ये सोचें आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से है तो भी खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा के कलाम में हमें तसल्ली और इत्मीनान मिलता है और ऐसा इत्मीनान कहीं भी नहीं मिलता। खुदावंद का कलाम हमें बताता है, यूहन्ना उसका 14वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ये खुदावंद यीशु का वादा है हमारे लिए। हमें घबराना नहीं है बल्कि खुदावंद का इत्मीनान लेना है, वो इत्मीनान जो दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल मसाइल का हल हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, कलाम के मुताबिक इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देता है। इसीलिए दुनियावी हल से बेहतर है अब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह से उस इत्मीनान को ले लें जो वो हमारे लिए इस दुनिया में छोड़ के गया है। हम निहायत ही प्रिविलेज्ड हैं कि यीशु मसीह ने अपना सुकून और इत्मीनान हमें बख्शा है। आज आप अगर इस बात से परेशान हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मैं इतना अच्छा हूँ और सारी बुराई मेरे साथ ही क्यों होती है, तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहूंगी कि नेक इंसान इस दुनिया में एक ही था और वो था यीशु मसीह। उसके अलावा कोई नेक नहीं है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छा हूँ और मेरे साथ बुरा हो रहा है। अच्छा तो वो था, वो यीशु मसीह था, और बुरा उसके साथ हुआ। जैसे उसको मारा गया, उसको ना अपनाया गया और उसने वो सब कुछ कबूल किया हमारे लिए, उसने वो मौत ली हमारे लिए। तो आज जब वो हमें जिंदगी देकर गया है तो हम क्यों भागते हैं कि मौत को ही गले लगा लें। उसने हमारे लिए मौत नहीं रखी है, उसने हमारे लिए जिंदगी रखी है। इसीलिए अपनी सोचों को ओवरकम करें, खुदा के कलाम के अंदर गहराई में जाएं, गहरे में जाएं, एक आयत लें और उस पर सोचना शुरू करें, उसको बार बार अपने अंदर दोहराना शुरू करें। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। अपने आप को ये याद दिलाएं कि यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं जिंदगी पाऊं, इसीलिए मैं ये गुनाह नहीं करूंगा या मैं ये गुनाह नहीं करूंगी, मैं अपने आप को खत्म नहीं कर सकती। रसूलों की जिंदगी देखें, कैसी मुश्किल गुजारी उन्होंने, किस कदर उनको मारा पीटा गया, किस कदर उनको दबाया गया, उनको सताया गया। तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने ये कहा कि हम तो इतने अच्छे हैं फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन्होंने ये कहा कि हम तो यीशु तेरे ही कलाम को फैला रहे हैं, हम क्या बुराई कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों जुल्म सितम हो रहा है, हम क्यों ये कैद बर्दाश्त कर रहे हैं? लेकिन आप उनकी जिंदगियों में देखेंगे, उन्होंने जो कुछ भी सहा, उन्होंने आखिर में यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया, उन्होंने खुदा के नाम को जलाल दिया और उन्होंने सब कुछ शुक्रगुजारी से अपने अंदर लिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो काम यीशु मसीह ने उनके लिए किया है उसके आखिर में उनके लिए हमेशा की जिंदगी है। इसीलिए आज आप इनकरेज हो, उनकी जिंदगी पर गौर करें, किस कदर सताया जाता था उनको, किस कदर मारा जाता था उनको, लेकिन उन्होंने अपने अंदर यीशु मसीह के इत्मीनान को रखा हुआ था। आज हम भी अगर सताए जा रहे हैं, हम भी अगर परेशान हैं, हम भी अगर डिप्रेशन का शिकार हैं, तो हम इसमें निकल सकते हैं, हम इसमें से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए इत्मीनान और तसल्ली यीशु मसीह में है। जब हम अपने आप को यीशु मसीह में पेवस्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर इत्मीनान आ जाता है। पौलुस रसूल फिलिपियों के खत उसके 4 बाब उसकी 13 आयत में कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब जब ताकत बख्शने वाला वो है, जब हमें कुव्वत देने वाला वो है, तो हम डिमोटिवेट ना हो जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरी जिंदगी वर्थलेस है, या मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा। हम उससे कुव्वत लें और उससे कुव्वत लेकर हम सब कुछ कर सकते हैं। और खुदावंद का कलाम सच्चा है, वो हर सिचुएशन में सच्चा साबित होता है। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 33वीं आयत में फिर यीशु मसीह हमें कहता है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। जब यीशु मसीह ने, जब वो दुनिया में था, तो उसने दुनिया में मुसीबत उठाई, तो हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने।
हम फिर भी मुसीबत उठा रहे हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के कि वो हमें अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली दे के गया है। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो अपने रूहुल कुदस को हमारे लिए छोड़ के गया है, जो हमारा कंफर्टर है, जो हमें तसल्ली बख्शता है, जो हमें गाइड करता है। रूहुल कुदस के फल में से एक फल है सब्र। अब सब्र का फल कैसे पैदा होता है? फल का एक प्रोसेस है। बीज बोया जाता है, एकदम से वो पैदा नहीं हो जाता। किसी के दुआ करने से एकदम से फल नहीं निकल आता, उसका एक प्रोसेस होता है। जब तक डाली उस दरख्त के साथ पेवस्त रहती है तो उस डाली पर फल निकलता है, और फिर फल पहले छोटा होता है। आम है, पहले वो खट्टा होता है, उसको वक्त लगता है पकने में, और फिर वो मीठा हो जाता है। इसीलिए कभी कभार हमारे ऊपर मुश्किलात इस वजह से भी आ रही होती हैं कि रूह के फल हमारे अंदर पक रहे होते हैं, और रूह के फलों को पकने के लिए एक प्रोसेस में से गुजरना जरूरी है। कभी कभार हमें मुसीबत उठाना जरूरी है। इसीलिए आज अगर आप मुसीबत उठा रहे हैं तो इब्लीस को अपने ऊपर गालिब ना होने दें। अगर आप इन सोचों से मगलूब हो जाएंगे और अपनी जिंदगी ले लेंगे तो इब्लीस जीत जाएगा, और हमें उसको जीतने नहीं देना, बल्कि कलाम कहता है कि हम उसका मुकाबला करेंगे और वो हमसे भाग जाएगा। तो मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? मुकाबला इब्लीस का सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम से है। इसीलिए सब चीजों को छोड़ दें। ये जो सोचें, शक, ख्याल आपके परेशान कर रहे हैं और आपको मौत की तरफ धकेल रहे हैं, इनको एक साइड पर करें। आपको खुदा ने कुव्वत बख्शी है और वो कुव्वत बख्श रहा है आपको, उससे कुव्वत मांगे। यीशु मसीह के इत्मीनान को लें अपने अंदर, रूहुल कुदस की मदद को लें, उसकी तसल्ली, उसके इत्मीनान को लें, और उठ खड़े हों फिर से और इस मौत का मुकाबला करें। जैसे यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई, उसी तरह से ये जो मौत की रूह है जो आपके पीछे पड़ी है, कि आपकी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती है, मेरे अजीजों उठ खड़े हो और इसके खिलाफ लड़ें, और अपने आप को खत्म ना करें, अपनी जिंदगी को खत्म ना करें। आपके मसाइल का हल खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी एक गुनाह है, ये कोई हल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, खुदा के कलाम पर तवज्जो करें, ऊपर खुदा की तरफ देखना शुरू करें, चीजों को अपने कंट्रोल से छोड़ दें। खुद अपनी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि खुदा पर भरोसा करें। अपनी सोच समझ पर तवक्कल ना करें, खुदा पर भरोसा करना शुरू करें, तो खुदावंद का कलाम आपको आजाद करेगा।